Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this lecture I am going to talk about the subject which is most debatable subject in your CGPSC examination, the subject which is among the most toughest subject said by many people, that कि philosophy बस हो जाए यार, बाकी तो PSC निकल जाएगी. They start questioning about the examination, and this type of questioning once started about the life. इसी तरह का क्वेश्चन कभी लाइफ के ऊपर से था कि लाइफ को जिएंगे कैसे, हाउ वी विल सर्वाइव इन दिस अर्थ, हाउ वी विल सर्वाइव अवर लाइफ, एंड व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड अवर लाइफ. एंड सीइंग ऑल दिस थिंग, वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर्स ऑफ द टाइम नेम सॉक्रेट्स. सच्चाई के लिए जहर पी लेने वाला कौन था? सॉक्रेट्स था. ही इज नॉट गोइंग टू टेल द लाई, बट जहर पीना पसंद कर लेंगे. एंड दैट सॉक्रेट्स सेड द अनएग्जामिन्ड लाइफ is not worth living. The unexamined life is not worth living. That is, if you do not examine your life, if you do not give any meaning to your life, and if you don't find the meaning of or the purpose of this life, then you are not living your life actually. It is better to die than to live without examining the purpose of your life and the purpose for which you are here. And with this such examination about the life, about the papers, I will say it is one of the most important and one of the most beautiful subject among all the subjects that we have in the examination. The most purest subject, the subject that will incite your inner will, that will incite you to think in the much broader sense about the humanity, among the peoples and among the different floras and faunas. But how will it start? What we read and how we'll achieve or how we'll complete our syllabus, this comes in your mind in the very next time once you will talk about the philosophy in CGPSC. So this is Pankaj Gupta from Bilaspur IAS Academy, and I will be dealing the philosophy. It is a part of your Chhattisgarh PSC syllabus, paper 6, and it comes in the third part. If you will talk about the complete the subject, if we talk about the complete mark of the subjects, so this subject will cover around 75 marks in your mains examination, and in prelims examination near about 3 to 4 questions definitely comes from this section. Sometimes they ask you even around the 5 questions, so I'll consider it as your around 10 marks in prelims. Okay, this time there are 3 questions, other way around mostly 5 questions होते हैं about from the philosophy. So it is a very important subjects in terms of both prelims and mains. So again, one more thing here, that how we will prepare philosophy, and especially the challenge remains because for English medium student we do not have the sufficient materials, and there is no particular material from where you can read the philosophy. So what I will do, I will teach you, I will give you the handouts. I have synced both the things in my lectures. So I will give you the topic wise handouts. In process I will also launch my book in the later part, but I will start with the handout first. I have written the books, but I think let me start first is teaching you this thing. Then the most beautiful subject, once you understand the subject, then it is good to read that materials. Because philosophy is not something that you can read and imbibe. Philosophy is something that you can listen, you can learn, and then you can enjoy the subject, and then you start reading. Ultimately you will evoke yourself, आपके अंदर knowledge अपने आप gain होगा, and in process you will become a humble person, the calm individual, by learning all the aspects of philosophy. It is not just about the 12-15 topics that we have to study, but it is about how we will see the subject called philosophy. Okay, so for the examination purpose, अगर हम CGPSC के purpose से हम देखते हैं, so first of all let me give you the syllabus of philosophy, what all we need to study under the philosophy, and how this syllabus is आपका क्या हुआ है, is parted. We are seeing there are 3 papers in paper 6. The third one is your philosophy, but the philosophy syllabus is itself broke up into the certain parts. And if you are good with that type of understanding, you will easily decode the subject. Okay, so what I did, the complete philosophy syllabus, उसको हमने क्या किया, अलग अलग part wise divide कर दिया गया. So I have divided philosophy syllabus in number of chains. So the first point would be your Indian philosophy.
First part I have divided into Indian philosophy and as such the basics of philosophy. Indian philosophy and basics of philosophy. Basics of philosophy. Clear है? So first part would be Indian philosophy, including the basics of philosophy. Then we'll move towards the philosophical thinkers. It is good that we have only the Indian philosophical thinkers. उनका एस्पेक्ट देखना है. Most of the Western thinkers जो कि philosophy based आपका जो Western philosophical thinkers है उनकी ideology को डायरेक्ट प्रेजेंट किया गया है. Okay, so we have the two aspects of thinkers. One is the basic of philosophy and the Indian philosophy. Then the thinker based we have Western philosophy and most of the we have the Western philosophy and also we have some of the Indian philosophical philosophers or the thinkers. ठीक है, तो सिलेबस को हम कैसे डिवाइड करेंगे? सी बेसिक्स ऑफ फिलॉसफी इंक्लूडिंग इंडियन फिलॉसफी, देन फिलोसॉफिकल थिंकर्स, द इंडियन फिलोसॉफिकल थिंकर्स दैट आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस, देन वी विल मूव टुवर्ड द वेस्टर्न फिलॉसफी एंड द वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थिंकर्स. ओके, एंड देन इतने के बाद हम सोचते हैं कि फिलॉसफी खत्म हो गया हमारा सब्जेक्ट. नो, आवर सब्जेक्ट है सर्टेन मोर टॉपिक्स, उनका भी एक वेटेज है, उनका भी वेटेज है. दैट इज द पार्ट जो रिसेंटली ऐड हुआ था, द वैल्यू एंड एथिक्स, द पार्ट ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स. What all values you should have, you should pursue, or what are the different kind of ethics you should have in your life. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेट. आप जब यहाँ से क्या बन के जाओगे, प्रशासन का पार्ट बनोगे, ब्यूरोक्रेट्स बनोगे. सो व्हाट ऑल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एथिक्स यू शुड हैव. सो वी हैव द वैल्यूज एंड एथिक्स सिस्टम. अंडर दिस सिस्टम ओनली वी विल टॉक अबाउट द करप्शन ऑल्सो. Why corruption prevails in India? What are the reason behind corruption? What are the different types of corruption? तो ये भी एक टॉपिक यहाँ पर मेंशन है. Then we have the certain ethical dilemmas. The dilemmas where we have to choose between the right and wrong. We have to choose between the true and false. Okay. So ultimately after analyzing the philosophy or after reading the philosophy, आपका क्या होगा? आपका ब्रेन अपने आप एक्सेप्ट करने लगेगा चीजों को, और आप क्या कर सकते हो? फिलॉसफी से, इस चीजों से सीख कर आप क्या कर सकते हो? सही और गलत में पहचान कर सकते हो. यू आर एबल टू रेक्टिफाई व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन जनरल टर्म. अभी देखेंगे, अब इतना जल्दी आपको होगा कि नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है आप सब्जेक्ट को कितने अच्छे से समझते हैं. एंड आई प्रॉमिस यू आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा एंड यू डोंट नीड टू रीड द सब्जेक्ट ट्वाइस. फिर बाद में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस एक बार आप पढ़ो, नोट्स पढ़ो डेफिनेटली. उसके बाद आपको कभी आपको फिलॉसफी परेशान नहीं करेगी इसके बाद कभी भी. एंड फिलॉसफी विल बी लाइक अ बटर फॉर यू. ठीक है, बिल्कुल बटर और मक्खन के जैसे आपको फिलॉसफी हमेशा के लिए आ जाएगी. बट जस्ट लेट मी स्टार्ट द टॉपिक्स. ठीक है, बड़े पहले समझते हैं सिलेबस को. सो इंडियन फिलॉसफी, देन वी हैव फिलॉसफी एंड द थिंकर्स, देन इंडियन के साथ साथ आपका वेस्टर्न फिलॉसफी एंड द वेस्टर्न थिंकर्स, देन वी हैव talks on ethical dilemma, corruption, more of talks on values and ethics. और एक और पार्ट दिया है बिट ऑफ रिलीजन, थोड़ा सा ही दिया है, रिलीजन डेवलपमेंट्स एंड रिलीजन के रिस्पेक्टिव में आपका व्हाट इज सेक्युलरिज्म. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी मेंशन है आपके टॉपिक्स पे. सो इन टोटलिटी इस तरह से आपका क्या है, सिलेबस डिकोड होता है. आई एम गिविंग यू द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस. देखो, आउट ऑफ द 75 मार्क्स, अगर हम इस 75 मार्क्स को देखते हैं फॉर मेंस, सो दिस पार्ट डोमिनेट, ये सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है ये पार्ट आपके सिलेबस पर. ठीक है, सो और उसके बाद आपका क्या आता है, फिलोसफिकर्स एंड थिंकर्स, ये वाला पार्ट. सी एक पार्ट ये भी है जो बहुत इजी पार्ट है, इजीएस्ट ऑफ देम ऑल, ये वाला पार्ट. ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब एग्जाम का पेपर बनाएंगे तो दे विल नॉट ड्वेल इनटू कि बस यहीं से पेपर बना दिया. वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स को उठाकर अलग अलग रीजन से पेपर बनाते हैं. ठीक है, सो आई विल एक्सपेक्ट कि नियर अबाउट 15 मार्क्स दे विल गिव वेटेज टू दिस सेक्शन. अबाउट 15 मार्क्स आपका इस सेक्शन से वेटेज बनेगा. सेम इज द केस विद फिलोसफिकल थिंकर्स. ठीक है, सो दे विल आल्सो गिव अराउंड 15 मार्क्स वहां पे. ठीक है, तो 15 इज योर 30 मार्क्स. ठीक है, 30 मार्क्स, देन दे विल गिव वेटेज ऑफ अराउंड 30 मार्क्स टू दिस सेक्शन. क्लियर है, एंड 15 मार्क्स, अराउंड 15 मार्क्स आपका यहां पर आता है. क्लियर है, सो प्लीज थोड़ा सा समझेंगे सिलेबस को कि सिलेबस को किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए. ठीक है, वेरी कहां पर करेगा, ये तो आपका फिक्स नेचर का होगा, ये तो देख लेना आपका यही नेचर पूरा होगा. हो सकता है इंडियन थिंकर्स 12 मार्क्स का पूछ लें, उनको क्या पूछ लें, 18 मार्क्स का पूछ लें. हो सकता है कि उसको 18 मार्क्स का पूछ लें, इसको 12 मार्क्स का कर लें, या इसको 12 मार्क्स का कर लें, इसको 18 का. सो दिस 3 कैन वेरी, ये तीनों तो आपका वेरी हो सकता है, बट ये आपका क्या होता है, रिमेन फिक्स्ड. सो प्लीज इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि जब अभी आपका क्या है 35 डेज बचे हुए हैं मेंस के लिए, जो भी अभी बच्चे अभी मेंस लिख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो फिलॉसफी को पढ़ना चाह रहे हैं हमसे, उनके लिए ये चालू किया गया है फिलॉसफी को यहाँ पर, दैट यू कैन एटलीस्ट स्टडी फिलॉसफी. यहाँ पर अभी पढ़ लेंगे
मुझे पता है आपने पढ़ा होगा, बट हाँ कहीं वहीं पर किसी किसी चीज़ों पे डाउट होगा, सो उस चीज़ों को हम यहाँ से आपका रिमूव कर देंगे। और जो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर का एग्जाम दुनिया भर के बाहर हो गया है, वो भी होगा ही होगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा। अभी वाले तो बिल्कुल परेशान है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा। सो पहले से ही हम क्यों वो ना करें कि विल प्रैक्टिस सम ऑफ द आंसर राइटिंग्स इन दिस पार्ट। हम अपने नोट्स को ही ऐसा सिंक कर लें कि हमारा आंसर्स प्रैक्टिस हो जाए। हम नोट्स को ही उस तरह से पढ़ें कि हम इन मार्क्स को टारगेट करते हुए पढ़ाई करें। इट इज अ स्मार्ट वे ऑफ स्टडी। हार्ड वर्क तो रिक्वायर्ड है कि आप इसको पूरे की पूरी चीज़ों को आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स, बट द स्मार्ट वे इज टू कि किस तरह से किस फैक्ट्स को याद रखना है, एंड इन दैट मैनर ओनली आई विल टीच यू, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो और स्कोर भी आप अच्छा कर पाए और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। सो एसेंशियली ये सिलेबस आपका किस तरह से है। सो आई विल टॉक अबाउट द इंडियन फिलोसफी। देखो अब यहाँ पर दो एस्पेक्ट दिख रहे हैं, इंडियन फिलोसफी, इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न फिलोसफी एंड वेस्टर्न थिंकर्स। सो अल्टीमेटली हमारा जो फिलोसफी का सिलेबस है वो डिवाइडेड बिटवीन है इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है। इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी पे हमारा सिलेबस कंप्लीटली डिवाइडेड है। सो दिस विल गिव यू वन थिंग कि ये दो फिलोसफी अलग अलग क्यों है, ये तो आपके अंदर आना चाहिए क्वेश्चन। फिलोसफी मीन्स इज इंक्वायरी। फिलोसफी का मतलब ही क्या है आपका, इंक्वायरी, क्या आपको क्वेश्चन करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही आना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज फिलोसफी, ये होता क्या है। देन इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी सिलेबस में लिखा है। सो देन यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज इंडियन फिलोसफी, व्हाट इज वेस्टर्न फिलोसफी। एंड थर्ड क्वेश्चन वुड बी इन योर माइंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फिलोसफी, एंड जस्ट सी द सिलेबस, ये तीनों शुरू में लिखे हुए हैं। और यहां से एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, इन्हीं तीन क्वेश्चन का जो एस्पेक्ट है उससे एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेंस पे। इधर भी टॉक अबाउट द इंडियन फिलोसफी, उसके नेचर को पूछेंगे, इसके स्कोप को पूछेंगे, क्या डिफरेंस है फिलोसफी और रिलीजन में, ये सारा चीज आता है आपका। द फर्स्ट टॉपिक अबाउट द इंडियन फिलोसफी दैट इज द नेचर, स्कोप एंड इसका कैसे लिंक है अदर साइंस से। सो डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको तीन क्वेश्चन इंसाइड किया, व्हाट इज फिलोसफी, इन हिंदी में क्या बोलेंगे, दर्शन क्या है। दर्शन इज टू सी, फिलोसफी इज टू इंक्वायरी एंड टू अटेन द विजडम, बट दर्शन इज टू सी इन द राइट मैनर, द राइट थिंग एंड इन द राइट अप्रोच। आई विल गिव यू, सारा चीज हम पढ़ाएंगे एकदम डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बट अभी आपको सिर्फ सिलेबस को एक्सपेक्ट को हम समझा रहे हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट एस्पेक्ट जो है आपका सिलेबस का वो यहां से ही होता है, और दूसरा इसके साथ इसका क्या डिफरेंस है। डिफरेंस मेनी पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, डिफरेंस में फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। इंडिया में जब फिलोसफी आई थी, वे बैक बहुत पुरानी बातें, वेद वगैरह चल रहे थे उस समय, जब इंडिया में इंक्वायरी स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ वेद दैट इज कॉल्ड उपनिषद, सो द मेजॉरिटी ऑफ द थॉट्स इज रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ लाइफ एंड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान और अपनी लाइफ के ऊपर था। यहीं पर सारे के सारे इंक्वायरी चल रहे थे और यहीं से सारे क्वेश्चंस उठे, और उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देते हुए वी हैव डेवलप्ड समथिंग कॉल्ड इंडियन फिलोसफी। पर जब ये क्वेश्चन उठे अबाउट द लाइफ और अबाउट द गॉड, भगवान और साथ ही साथ आपके जीवन, इन दोनों पे जब सवाल उठने लगे, क्वेश्चंस अराइज हुए, सो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने क्या किए, थॉट्स प्रेजेंट किए। और थॉट्स प्रेजेंट करते हुए उन्होंने क्या कहा, दे सेड सम विल कम एंड से नो, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान नहीं है, वी ओनली आर द ह्यूमंस, हम खुद हैं, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सोल, हमारे एक आत्मा है, एंड उससे हम कंट्रोल हो रहे हैं, सपोज करते हैं, इट इज नॉट द राइट स्टेटमेंट, बट हाँ एक सपोजिशन देते हैं। अदर विल कम एंड से कि नहीं, देयर इज अ गॉड एंड गॉड के कारण ही हमारे अंदर सोल है, भगवान है इसलिए हमारे अंदर आत्मा है, और ये आत्मा क्या है, उस परमात्मा का पार्ट है, ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड विल कम एंड से ना भगवान है ना आत्मा है, जो हूं मैं हूं, और आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो सोल, आई एम हियर एंड आई हैव ऑल द राइट टू एंजॉय माई लाइफ, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो बोलोगे सर ये बताने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है अभी बताते हैं आपको। इसमें क्या था, तीन तरह के क्वेश्चन अराइज हुए, तीन क्वेश्चन अराइज हुए थे, एक तो पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था अबाउट द गॉड, और एक न्यूट्रल था, उसको कोई मतलब नहीं था। और इंडियन फिलॉसफी की खासियत यही है, दिस थ्री थिंग इज द नेचर एंड द स्कोप, और यही आपकी क्या है खासियत है, द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। इंडियन फिलॉसफी हैज एक्सेप्टेड ऑल थ्री व्यूज, वो तीनों चीज बोलने के लिए एक टाइम पे, एट द सेम टाइम, इंडियन फिलॉसफी एक्सेप्टेड ऑल द व्यूज,
इतनी ब्यूटीफुल चीजें। कोई भगवान को मना कर रहा है, उसकी बात को भी सुनकर उसको भी कोडिफाई किया गया। जो मान नहीं रहे हैं और जो मान रहे हैं उनकी बातों को भी रखा गया, जो न्यूट्रल है उनकी बातों को रखा गया। देयर इज नो रिफ्यूटेशन, रिफ्यूट नहीं कर रहे हैं लोग अपने व्यू दे रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इंडियन फिलॉसफी यहां से जन्मा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन फिलॉसफी, दैट इट हैज एसिमुलेटेड ऑल द व्यूज, whether it is a positive view, negative view, or the neutral views about the existence of life or the existence of God or the purpose of life. चारवाक comes, चारवाक बोलेंगे कि किसी चीज में कुछ नहीं, आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हेडोनिज्म, ठीक है, आपका क्या है, हेडोनिज्म के थॉट्स दे रहे हैं, बोल रहे हैं घी पियो, एंजॉय करो, ड्रिंक घी एंड लिव योर लाइफ, टेक लोन ड्रिंक घी, उधार लो घी पियो, जीवन एक ही है उसको जी लो। उनको भी उसी समय प्लेस मिल रहा है जिस समय हम गीता को भी हम अपने यहाँ पर प्लेस दे रहे हैं कि कर्म योग ही सब कुछ है। ही सेड कि कुछ नहीं करना है। एंड आजीविका द फिलोसफी ऑफ फेटलिज्म, इट टेल्स नियति और योर डेस्टिनी इज प्री डिफाइंड एंड यू डोंट नीड टू वर्क एनीथिंग, आपकी डेस्टिनी डिफाइंड एंड यू विल अटेन योर डेस्टिनी समहाउ, पता नहीं किस तरह से। बट ऑन द अदर हैंड there is a Gita and it talks about the कर्म योग, कि आपको कर्म करना होगा अपने कर्मों को। I'll talk about all that. That is you have to perform your duty. कर्म is your duty. तो वो bit of हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सचर करेंगे इसलिए ताकि आपको ये फिलॉसफी काफी अच्छे से समझ आए। Some of the terminologies still remain in your Hindi or the Sanskrit abbreviations or Sanskrit letters. स्थित प्रज्ञ, द पैरास्टैटिक स्टेट ऑफ माइंड, तो वो उसको हम वही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, इजी होगा। कर्म इज टू डू सम वर्क और द ड्यूटी, तो वो दोनों को लेकर चलेंगे। तो इंडियन फिलॉसफी में क्या हुआ, ये सारे चीजों को एक साथ एट द सेम टाइम ऑल द व्यूज आर एक्सेप्टेड एंड इंडियन फिलॉसफी हेंस कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट बेस्ड फिलॉसफी। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट फिलॉसफी मतलब एक साथ बहुत सारे लोग आए और सबने भी अपने अपने थॉट्स रखे और उन थॉट्स को एक साथ लेते हुए हमारा फिलॉसफी बढ़ा। बट ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न फिलॉसफी, अगर हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करेंगे, सो इट इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल फिलॉसफी, इट इवॉल्व विद द टाइम, इट हैज द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, दैट इज इट इवॉल्व्स विद द टाइम एंड वन फिलोसफर एट अ टाइम, मैनी फिलोसफर्स एट अ टाइम, वन फिलोसफर्स एट अ टाइम। Plato came, he gave the theory of virtue. Then the Aristotle, he came, उसने कुछ बताया। Then suppose करो सेंट इस्लाम, उन्होंने कुछ बताया। So इनका क्या था, इनका एक वर्टिकल डेवलपमेंट था and it is more of refutation. Refutation मतलब पिछले ने कुछ बताया उसको या तो वो क्या कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। अदर वे अराउंड दे आर सेइंग कि नहीं ऐसा होता है तो उसमें ये भी चीजें होती है। So they are either changing the things or they are refuted with one another. So it is more of refutation based development of philosophy and it is more of your vertical development based philosophy. It is a horizontal philosophy, less refutation and more of ऐसा आपके क्या यहाँ पर एक साथ आके मिल रहे हैं। So less of refutation and more of assimilation, ठीक है। So this is the basic difference between the Indian and Western philosophy. इसके बाद तो और भी चीजें कि फिलॉसफी को यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, इंडियन फिलॉसफी इज मोर अबाउट नोइंग अबाउट द लाइफ और द यूनिवर्स और द आपका क्या है, लाइफ का क्या पर्पस है, पर्पस ऑफ लाइफ। बट वेस्टर्न फिलॉसफी इज मोर टुवर्ड द साइंटिफिक इंक्वायरी एंड द विजडम अबाउट द नॉलेज, द लव फॉर नॉलेज। आपको चीजों के बारे में इंक्वायरी करना है, नॉलेज गेन करना है, चीजों जो भी चीजें हैं, ठीक है। सो इट इज मोर ऑफ द नॉलेज बेस्ड द इंक्वायरी और द विजडम, दिस वन इज मोर टुवर्ड्स द लाइफ, ठीक है। सो आपका अलग अलग दोनों के थीम्स हैं, देयर आर सर्टेन फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स अलग हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, इंडियन फिलोसफी में फाइनल क्या है, स्टार्ट तो इंक्वायरी से, किस चीज के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, टू अटेंड लिबरेशन, दैट इज मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के लिए, लिबरेशन को अटेंड करने के लिए ये दर्शन है। बट वेस्टर्न फिलोसफी इट इज अबाउट गेटिंग द नॉलेज, अटेनिंग द विजडम, नॉलेज का जो हाईएस्ट लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एज द विजडम। यू स्टार्ट विथ स्टडिंग देन यू अल्टीमेटली लर्न द थिंग्स। सबसे पहले तो क्या करते हो, आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद चीजों को सीखते हो, लर्निंग होती है, लर्निंग के बाद उसको कहीं पर अप्लाई करते हो, उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग को कहीं अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वहां से जो सीख मिलती है उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। सो यू स्टार्ट फ्रॉम स्टडिंग देन मूव टुवर्ड लर्निंग देन मूव टुवर्ड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस होने के बाद द अल्टीमेट यू इज गेटिंग द विजडम। तो ये पूरा प्रोसेस है, स्टडी, लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड विजडम, और इस विजडम को अटेंड करना ही क्या है, द अल्टीमेट गोल ऑफ वेस्टर्न
फिलॉसफी। आज जो आपने पढ़ा सीखा उसको अप्लाई करोगे, उसकी लर्निंग कर्व होगी, लाइफ में आगे चलोगे, कहीं बाहर निकलोगे, इस क्लासरूम से बाहर निकलोगे, अपनी जगह से बाहर निकलोगे और वहां पर जाके क्या करोगे, उस चीज को लोगों से मिलोगे, वहां पर उस चीज को अप्लाई करोगे, सीखोगे धीरे धीरे। जब उस चीजों को सीख जाओगे, अप्लाई करने लगोगे, तो उसी चीज को आप क्या करोगे आगे, उनका आपका एक्सपीरियंस होगा, बच्चों को सिखाओगे, किसी और को सिखाओगे विद एज कि नहीं ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, देन अल्टीमेटली यू विल मास्टर द थिंग्स। और जो अल्टीमेट लेवल होगा उसको बोलते हैं विजडम और विजडम। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर कि दोनों में डिफरेंस क्या था। अब बिट ऑफ टॉक हो रहा है, बहुत ज्यादा हम इस पे नहीं लेकर चल रहे हैं क्योंकि मैं सब चीजों को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, ये दो चीजें आपके क्या है, पैरेलल डेवलपमेंट है दोनों का। टाइम फेज अलग अलग हो सकता है, बट हाँ मोर प्रोबेबली ओवरलैप होते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि इतना भी हाँ इंडियन फिलॉसफी पहले आया, वेस्टर्न फिलॉसफी बाद में आएगा, ये तो एक सच्चाई है। बट इसमें ये चीजें नहीं है कि एकदम ओवरलैपिंग नहीं है। हाँ, लेकिन ड्यूरिंग द मिडिवल फेज और द लेटर पार्ट ऑफ एंशिएंट फेज, वहां से दोनों का डेवलपमेंट कॉमनली चलता हुआ आया आगे तक। ठीक है, स्पेशली विद द अराइवल ऑफ सॉक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल, आपका ठीक है लॉकी, सो ऑल दिस पर्संस दे जस्ट गिव यू द थ्योरी आपका वेस्टर्न फिलॉसफी। एंड ऑन द अदर हैंड इंडियन फिलॉसफी की अगर बात करेंगे, जैसे वहां पर हम लोगों ने पर्सन टू पर्सन वेरी किया, बट इंडियन फिलॉसफी में ऐसा नहीं हुआ। पर्सन टू पर्सन से ज्यादा एक कॉमन एंटिटी बनी जिसके ऊपर इंक्वायरी की गई और वहां से कुछ हमारा फिलॉसफिकल डेवलपमेंट हुआ। सो वेद के एंड में आया उपनिषद, एंड उपनिषद गिव सम ऑफ द कॉन्सेप्ट लाइक ब्रह्म, रीत। ठीक है, तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स कहां से आए, आपके उपनिषद से आए, और उपनिषद के ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हुई, और उपनिषद से ही एंड में वी हैव कम विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड उत्तर मीमांसा एंड द पूर्व मीमांसा। सो मीमांसा डेवलपमेंट हुआ, एंड मीमांसा के बाद वी हैव द सिक्स्थ स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। The sixth school of Indian philosophy, which include the Sakya philosophy, the Yoga philosophy, the Vaisheshika philosophy, the philosophy of Yoga by Patanjali. ठीक है, सो इस तरह से आपके अलग अलग उत्तर मीमांसा एंड द पूर्व मीमांसा। सो दीज आर द स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, और ये फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स था अबाउट इंक्वायरिंग अबाउट द उपनिषद एंड उसमें जो चीजें लिखी हैं उसके ऊपर, और वहां से उन्होंने समझाते हुए लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अबाउट दिस एनवायरमेंट और द जो भी चीजें हैं, इन सारे को उन्होंने क्या किया, एक फिलोसफिकल एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड दैट बिकम द बेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी। सो फिलोसफी दो इनिशियली स्टार्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, द इंडियन फिलोसफी की लिबरेशन कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, then it shifted its nature, then comes post philosophy। यहाँ से क्या हुआ, एक रिलीजन डेवलपमेंट के साथ हमारा फिलोसफिकल डेवलपमेंट हुआ विद द अराइवल ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य, देन वी हैव वल्लभाचार्य, वी हैव डिफरेंट फिलोसोफर्स। रिलीजन बेस्ड अगर देखेंगे, सो देयर इज अ गौतम बुद्ध, उनका पहले ही आया था, सो वी हैव द गौतम बुद्ध एंड जैन फिलोसफी। सो सारे चीज मेंशन पे है, नेचर, उपनिषद, वेद, गीता, द फिलोसफी ऑफ गीता, देन वी हैव चारवाक, देन चारवाक देयर वी एक्चुअल में आप देखेंगे चारवाक जब आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको फिलॉसफी बहुत अच्छे से समझ आनी स्टार्ट होगी। गीता से तो आएगी, बट चारवाक विल इनसाइड टू कि आप मल्टीपल डायमेंशन में सोचना स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फिलोसोफर ऑफ द टाइम चारवाक। ठीक है, तो चारवाक को जब हम पढ़ेंगे एवरी ईयर सीजीपीएससी हो या कोई एग्जाम पे, इवन यूपीएससी का अगर आप ऑप्शनल पेपर्स देखते हैं मेंस का, तो चारवाक बिकम्स द डायनेमिक टॉपिक, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चारवाक हमेशा एक इंपॉर्टेंट रहे हैं। सो चारवाक को हम पढ़ेंगे, वेदर इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेडोनिज्म, मेटाफिजिक्स। ठीक है, सो चाहे हम हेडोनिज्म पढ़ रहे हैं, मेटाफिजिक्स पढ़ रहे हैं, एम्पेरिसिज्म की बात करेंगे, एम्पेरिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो वर्ड से नहीं डरना है कि हेडोनिज्म क्या आ गया सर नया, ठीक है, मेटाफिजिक्स क्या हो गया, ठीक है, आपका क्या हो रहा है, नॉलेज बेस्ड आप किस तरह से इसको इंक्वायरी कर रहे हैं। तो सम इन द इंक्वायरी और उस इंक्वायरी को करना कैसे है, एंड टू डू सच इंक्वायरी कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड प्रमाण। तो उन प्रमाण को कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फिलोसफिकल डेवलपमेंट को समझने के लिए चारवाक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ वाटर शेड इन द इंडियन फिलोसफी, चारवाक बिकम द वाटर मार्क, और इसलिए यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। देन द टू इंपॉर्टेंट वन, द जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ अनिकांतवाद, द फिलोसफी ऑफ शादवाद, ठीक है, द फिलोसफी ऑफ अनिश्वरवाद, द फिलोसफी ऑफ शून्यवाद। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो बुद्धिज्म जैनिज्म की फिलोसफी हैं, विल टॉक अबाउट दैट। सो प्लीज हैव अ सिलेबस विथ यू एंड जस्ट मार्क डाउन द वर्ड्स आई एम टेलिंग फ्रॉम दिस साइड।
ठीक है, आप अपना सिलेबस एक ले लेंगे, फिलॉसफी ऑप्शनल का जो भी आपका सिलेबस है, एंड उसको एक बार इसको देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद उस टॉपिक्स को एक बार रीड करेंगे कि किसके अंदर कौन सा फिलॉसफी आता है। डे वन शुड नॉट बी कि हम आए और यहाँ दर्शन पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दें। डे वन शुड बी द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस एंड किसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट यू विल डू, सिलेबस उठाएंगे, लिखेंगे इंडियन फिलॉसफी, हाँ उसको फिर क्या करना है, आपके सिलेबस है पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसको आप क्या करना, वर्टिकल लिख लेना कि हाँ बुद्धिज्म इसके अंदर ये 3 है, जैनिज्म इसके अंदर ये 2 हैं, आपका यहाँ पर हमने 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी 7 के, तो 7 के दर्शन में आपको 2 चीजें पढ़नी है, वैशिष्ट उसके अंदर। राइटिंग इन दैट मैनर विल हेल्प यू कि आप पढ़ने क्या चाहते हो, और उसके बाद आप टिक करते जाना जो पढ़ लिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज द सिलेबस वेल, उसके बाद विल टॉक अबाउट जैनिज्म, बुद्धिज्म, एंड देन विल टॉक अबाउट द 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, और यही है आपका मेन सिलेबस, द 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा आगे। सो जो आपके कंटेम्प्रेरी से पहले, मतलब आज के नहीं, इससे पहले जो एंशिएंट मिडिवल टाइम पे जो हमारे ओल्ड थिंकर्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, श्री आदि गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। सो विल टॉक अबाउट, देखो यहाँ पर थिंकर्स भी डिपेंड करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो 30 मार्क्स को कैसे डिवाइडेड किया जाता है, ये वाला जो पार्ट है, जो फिलोसफिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, इंडियन फिलोसफी कैसे डेवलप हुई और उसके एस्पेक्ट्स की बात है, फ्रॉम देयर दे विल आस्क अराउंड 15 मार्क्स क्वेश्चन। एंड उसके बाद ये जो बच जाते हैं, शंकराचार्य, गुरु घासीदास, वल्लभाचार्य, गुरु नानक, ये वाला पार्ट, यहाँ से वो क्वेश्चन उठा के पूछते हैं, ठीक है। दे विल आल्सो इंक्लूड जैन एंड बुद्ध को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, और वो क्या करेंगे, ये फिलोसफिकल डेवलपमेंट में से एक क्वेश्चन बना देते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी समझना है। सो वी हैव श्री आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु घासीदास, वल्लभाचार्य, गुरु नानक, तो कुछ इनको हम क्या करेंगे, इनको पढ़ते हुए इनके जो थॉट्स हैं, दिस मैन, दिस पर्सन, गुरु नानक, अगर इनके बारे में बात करेंगे तो गुरु नानक ने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ठीक है, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल थॉट्स, ठीक है। और सोशल थॉट्स में ही सेड स्टैंड प्योर एमिड्स द इम्प्योरिटीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये जो आप अर्थ पे हैं, जो आप प्लेनेट पे हैं, जहां पर भी हैं, ये क्या है, यहाँ पर काफी इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटी से भरा हुआ है, एंड यू शुड स्टैंड प्योर, क्लियर। सो प्लीज इसको भी ध्यान रखेंगे, समवन इज देयर सो जस्ट गेट डिस्टर्ब। चलिए अब चलो वापस आते हैं, ठीक है। तो गुरु घासीदास वेरी फेमस, आपका छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में देखेंगे तो गुरु घासीदास एंड वल्लभाचार्य, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों का लिंक कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से ही है, ठीक है। सो गुरु घासीदास एंड हिज आइडिया ऑफ सतनाम पंथ, ठीक है। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट द वल्लभाचार्य, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पुष्टि मार्ग, ठीक है, that there is only a one mark, that is with that there is only a one path, marg is path, and that is the path of surrender to the God, भगवान के सामने आप सरेंडर करो, that is your पुष्टि मार्ग, सरेंडर इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हम बढ़ाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। सो वल्लभाचार्य एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पुष्टि मार्ग, देन गुरु नानक, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल थॉट्स, एंड ठीक है, सो उसके बारे में बात करेंगे। देन वी कम टू द philosophers and thinkers. So they have mentioned few thinkers like Mahatma Gandhi, his अहिंसा, सत्याग्रह एंड आपका क्या है 11 woes, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं एकादश व्रत। There are total 11 principles he gave, उनको आपको क्या करना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ अप्लाई करना चाहिए, एंड इफ यू अप्लाई दैट थिंग यू विल अल्टीमेटली गेट लिबरेशन, ठीक है। सो अहिंसा, सत्याग्रह एंड 11 woes. Then we have Dr. Bhimrao Ambedkar and his social thoughts about the Dalit upliftment and other things. So Dr. Bhimrao Ambedkar and his contribution we'll talk about. Then Sri Aurobindo, his concepts of internal yoga and आपका super conscious mind और supernatural mind, ठीक है। So internal yoga and super mind theory of Sri Aurobindo. Swami Vivekananda will talk about the practical Vedanta and universal religion, ठीक है, कि सर्वधर्म संभव universal religion. This concepts of Swami Vivekananda also will going to talk about in this lecture, ठीक है। तो ये जो थिंकर्स हैं, यहां पर क्या हुआ अल्टीमेटली, देखो यहां तक मैंने आपको क्या बोला कि फिलॉसफी का एम क्या है, इंडियन फिलॉसफी का द एम ऑफ इंडियन फिलॉसफी इज टू अटेन लिबरेशन। बट फ्रॉम हियर जब ये आएंगे कंटेम्प्रेरी मॉडर्न थिंकर्स, इनको बोला जाता है, हियर द फिलॉसफी चेंजेस इट्स अल्टीमेट गोल एंड नाउ द गोल बिकम सोशल अपलिफ्टमेंट। अब ठीक है, तो आपको यहां पर कहना है कि फिलॉसफी का मेन एम ये है दैट वी आर इंक्वायरिंग द थिंग्स just to give the social upliftment. अब liberation is not the aim. Aim is जो भी चीजें हैं उसको आपको अप्लाई करना है for the social upliftment, for the betterment of humanity. So bit of humanism comes here. ठीक है, पहले हमारे क्या था मोक्ष, इंडिविजुअलिज्म था वहां पर कि हर इंसान को क्या करना चाहिए अपने आप के लिए, कैसे वो ठीक कर सकता है, मोर ऑफ इंडिविजुअलिज्म. बट नाउ इट विल कम्स एज अ मोर ऑफ ह्यूमैनिज्म, एज अ
कंप्लीट सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, लोगों का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, ठीक है, उसके ऊपर यहां पर से बात होने लगी। एंड दिस एवोल्यूशन ऑफ इंडियन डेवलपमेंट इज गिवन बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आई टॉक अबाउट ऑल द फेसेस गिवन बाय द एस राधाकृष्णन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलोसफी। व्हाट ही टॉक्ड अबाउट द इंडियन फिलोसफी, कि किस तरह से इंडियन फिलोसफी का डेवलपमेंट हुआ है, राइट फ्रॉम द वेद टिल your contemporary modern thinkers, where we have shifted from liberation to the social upliftment or the betterment of society। ठीक है, तो ये कहता है आपका इंडियन फिलोसफी किस तरह से आपकी डेवलप हुई। क्लियर है, टूटा फूटा एक आपको आइडिया लगा होगा, अभी तो सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, बट हाँ सिलेबस का आइडिया लगा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट डेफिनेटली समझ आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सबसे इजी सब्जेक्ट तो यही था। ठीक है, और उसको नेचर से भी पढ़ेंगे हम लोग। देन कम्स द वेस्टर्न फिलोसफी। तो वी टॉक अबाउट दिस वेस्टर्न फिलोसफी, यहाँ पर क्या है, देखिए वेस्टर्न फिलोसफी में जितना इसमें हमने इनसाइट को खोजने की कोशिश की उतना मत खोजना। आई एम सेइंग बिल्कुल नया जुड़ा है आपके सिलेबस में, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन अभी पूछे भी नहीं गए। ठीक है, बट हाँ नेचर ऐसा रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। दे विल गिव यू कि राइट और एक्सप्लेन द कॉजेशन थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल। दे विल गिव द क्वेश्चन एक्सप्लेन द एंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ सेंट एंसलम। What are the Plato's views on virtue? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो व्हाट वी विल डू, हम इसको भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पढ़ेंगे, इस पर बहुत ज्यादा इंसाइट नहीं लेंगे अंदर जा जाकर। विल जस्ट कि हम उस चीज को समझेंगे एंड विल डू द राइटअप्स। समझते हुए हम क्या करेंगे, राइटअप्स करेंगे, ताकि आपका क्या हो कि कंपाइल्ड नोट्स बने और आपको जो चाहिए वही आ पाए। प्रीलिम्स में याद रखना, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछते, प्रीलिम्स में ये पार्ट नहीं आता, प्रीलिम्स में खाली इंडियन फिलोसफी का ही पार्ट है। तो ये सिलेबस फॉर प्रीलिम्स इज दिस मच ओनली, फॉर मेंस आपका ये सारा चीज जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पढ़ना है जो यहाँ पर लिखा है। लास्ट ईयर क्वेश्चन वाज आई थिंक देयरफॉर आई एम, एक्सप्लेन, यही क्वेश्चन था। वो क्या है, डायरेक्ट फिलोसफी गिवन बाय द डेकार्ट। तो डेकार्ट की फिलोसफी को डायरेक्ट पूछ लिया। स्पिनोजा द फिलोसफी ऑफ पैंथिज्म, बहुत अच्छा फिलोसफी है। विल टॉक अबाउट दैट पैंथिज्म फिलोसफी और द सब्सटेंस, द फिलोसफी ऑफ सब्सटेंस। लेबनिज टॉक अबाउट द मोनेड। तो Leibniz talk about the monad, and in Indian philosophy we have Vaisheshika philosophy, where we'll talk about the theory of atom, that the everything is constituted from certain atoms, कुछ particles मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं, चीजों को बनाए हैं। Same thing here is your monoid, कहीं ना कहीं उससे सिंक्ड है। पढ़ेंगे तो जो भी डिफरेंस हो तो हम समझ जाएंगे उसी समय, बट हाँ तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, कहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई भी होते हैं। Then this man, the Kant, the very important person, कांत, ये तो आपको हर जगह दिखेंगे, चाहे ज्योग्राफी देखें, हिस्ट्री देखें, कहीं भी देखें। कांत प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स दैट ही सेग्रीगेटेड द सब्जेक्ट्स। आज जो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसको दिया किसने था, वो कांत ही थे। एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेरिसिज्म। इंपेरिसिज्म मतलब आप किसी भी चीज की इंपेरिकल स्टडी कर रहे हो, दैट इज द स्टडी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। एग्जैक्टली आप उस जगह पे गए हो, उसको देखे हो, तब आप उसके बारे में बता रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर बैठ के आप क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल मॉडलिंग हो रही है, बैठ गए हो, नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है कि यहाँ पर ये चीजें तो उधर होनी चाहिए, नहीं। कांत सेड कि हम वहां पर जाओ, वहां पर उसको एम्पेरिकली देख कर आओ। ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी इज समथिंग दैट ही इनिशिएटेड शुरू में, दैट इज सम ऑफ एम्पेरिसिज्म बेस्ड। एंड अवर चारवाक अगेन द एम्पेरिसिज्म बेस्ड। व्हाट चारवाक सेज, परसेप्शन, ही गिव्स द थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू द परसेप्शन। प्रत्यक्ष ही क्या है, प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, दैट इज परसेप्शन इज the ultimate reality. What you have perceived, you have seen, वही है रियल। इन्फरेंस इज नॉट, इन्फर नहीं करना कि ऐसा है तो ऐसा होगा। परसेप्शन मतलब हम उसको देख रहे हैं। यू कैन परसीव, यू कैन फील और सेंस इट थ्रू द सेंसेस। आपके जो बॉडी में सेंसेस है, उन सेंसेस से आप उस चीज को फील कर सकते हैं, दैट इज परसेप्शन। ये किसने बोला, चारवाक। तो कहीं ना कहीं देखो कुछ ना कुछ चीजें हैं, आई टीच हियर एंड आई विल से कि हाँ वो चीज़ों को हम वहाँ पर भी समझेंगे, ताकि वो उसका एक बेस बन जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ किस एंगल पे सोचना है। फिलॉसफी टफ नहीं है, फिलॉसफी तब टफ हो जाती है जब आप सबको क्या करते हैं, पार्ट एंड पार्सल में पढ़ने लगते हैं कि नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसका ऐसा है, ऐसा है। जब आप फिलॉसफी का ऐसा होल पढ़ते हैं कि इससे ऐसा सोचने को, हमको एक क्वेश्चन इसने खत्म किया है और इस क्वेश्चन को उठाकर अगले ने क्या किया, क्वेश्चन कर दिया है। जब आप इस तरह से समझेंगे तो क्या होगा, एक आइडिया से आप दूसरे आइडिया को निकालेंगे और दूसरे से तीसरे को निकालेंगे, और यही तो फिलॉसफी है। और हम पढ़ेंगे भी वैसे, ये फिलॉसफी बना कैसे। आई विल नॉट टीच यू द फिलॉसफी की ये टॉपिक है पढ़ लो, ये फिलॉसफी बना कैसा, उसी में आपको पूरा का पूरा फिलॉसफी पढ़ा दूंगा, और अल्टीमेटली आपको क्या होगा, पूरी फिलॉसफी समझ जाएगी। और मैं अलग अलग अगर पढ़ाना चालू किया कि नहीं चलो आज महात्मा गांधी पढ़ लेते हैं, कल हम बी आर अम्बेडकर पढ़ लेते हैं,
दैट इज फिर आपका क्या होगा, फिलोसफी बिकम योर फैक्चुअल सब्जेक्ट। आप रटोगे और रटा जितना होगा लिख पाओगे, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। एंड अगर आप पेपर का नेचर देखोगे तो फिलोसफी कम्स इन द पेपर 6, दैट इज द लास्ट डे ऑफ योर पेपर। आप 3 दिन कंटिन्यू राइटअप करेंगे, लास्ट दिन लिखना होगा, कुछ दिमाग में नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग होगी तो ज़्यादा अच्छे से आपका दिमाग काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या था, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी एंड द थिंकर्स। नाउ वन मोर पार्ट इज योर दिस पार्ट। ठीक है, द रिलीजन, एथिकल डायलेमा, करप्शन, वैल्यूज एंड एथिक्स, इसमें देखेंगे। सो करप्शन ऐसे कि इसके लिए तो मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उस मोर देन सफिशिएंट है, उससे ही पढ़ना है। और अगर कोई अभी पढ़ना चाहता है एडवांस में, सो देयर इज अ डॉक्यूमेंट बाय गवर्नमेंट कॉल्ड ARC, सेकेंड ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का डॉक्यूमेंट, सेकेंड ARC, उसका चैप्टर 4 आप पढ़ लेंगे। वहाँ पर पूरा एथिक्स एंड करप्शन पे चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ से आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से जो नोट्स प्रिपेयर किया है आई विल शेयर, सो आप लोग उससे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप पढ़ाएंगे भी, आपको ऐसा नहीं कि क्लासेस नहीं होंगी। सो करप्शन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर। अभी अगर कोई दे रहा होगा मेंस तो करप्शन जरूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट ईयर भी हम देखेंगे यहाँ पर से क्या पूछ सकता है, बट अभी जो एग्जाम होने वाला है करप्शन 100% आप पढ़ कर जाइए, आपके एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन। देन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एथिकल डायलेमा। अब एथिकल डायलेमा का क्वेश्चन अभी CGPSC डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज एथिकल डायलेमा हो सकता है, बट बिकॉज एथिकल डायलेमा इज मोर ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई एक कंडीशंस देते हैं और उस कंडीशंस पे आपको चुनाव करना होता है। सो एथिकल डायलेमा इज मोर टुवर्ड्स योर केस स्टडी, बट CGPSC में केस स्टडी पूछा नहीं जाता, अभी तक तो पूछा नहीं गया। किसी साल पूछ लिया तो बात अलग है, बट हाँ होते क्या है, किस तरह से होते हैं, डेफिनेटली हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ लेंगे। सपोज करो ना कि किसी एक ने मर्डर कर दिया, किसी एक ने मर्डर किया और किसी के घर में जाकर वो छुप गया है। मर्डर किया, उसको कोई चेस कर रहा था, वो वापस भागा और एक घर पे वो छुप गया। एंड द पुलिस कम इन द डोर, उस पर्सन के नॉक किया और वो पर्सन बाहर आया और उससे बोला गया कि आपने क्या चोर को देखा है? एंड ही सेड और सी शेड जो भी है, नो। सो वेदर ही सी और ही इज एथिकली राइट और रॉन्ग, आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे और वो मोरली राइट थी या नहीं थी? ऑन द पॉइंट ऑफ जस्ट नोइंग दिस मच इवेंट यू विल से कि गलत है, उसको बता देना चाहिए क्योंकि उसने मर्डर किया है किसी का। ठीक है, उसके अंदर जाते हैं कि वो जब घर गया था, उस घर पे गया था तो उसने उसको बताया कि मेरे ऊपर अटैक हुआ था, देयर आर 3-4 पर्सन्स इन द क्राउड, दोज हु अटैक्ड मी, दे रॉब्ड इन माय फैमिली, मेरे घर से उसने चोरी करके दे रॉब्ड इन माय होम एंड दे कम्ड आउट, मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स को उन्होंने हर्ट किया था और मैं भागा वहां से। एंड इन बिटवीन वो लोग मेरे को चेस कर रहे थे और दे अल्टीमेटली, उनके पास गन्स थे और वो गन मेरे हाथ लगे और मैंने उनको मार दिया। और उसके बाद मैं डर गया कि मुझे क्या करना है, सो मैं वहां भाग कर आया और यहाँ छुपा हुआ। और इसको सुनने के बाद अगले पर्सन ने मना किया था। नाउ व्हाट आर योर थॉट्स, सही है या गलत है? नहीं बोल सकी, फिर भी गलत है क्योंकि मर्डर तो किया है ना, नहीं मारना था, पुलिस को बताना था, बट वो सिचुएशन ऐसा था कि उसको मारना था। फॉर योर फैमिली प्रोटेक्शन एंड फॉर योर प्रोटेक्शन यू कैन डू दिस थिंग। सुप्रीम कोर्ट भी तो बोल रहा है, तो वो तो वहां पर सही था, बट अगेन उसने एक मर्डर तो किया था। एंड सच क्वेश्चन अराइजेस अंडर द एथिकल डायलेमा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। कहीं पर विलेज पे, इन सम विलेज पीपल रिफ्यूज टू ईट द मिड डे मील। मिड डे मील जो मिलता है बच्चों को, उसको खाने से मना कर दिया कुछ बच्चों ने, एंड सेइंग कि हम नहीं खाएंगे क्योंकि जो खाना बनाने वाला है, द वन हु इज कुकिंग द फूड इज एक्चुअली बिलोंगिंग फ्रॉम द लो कास्ट कम्युनिटी। लो कास्ट से आता है, इसलिए हम उसके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं बनाएंगे। एंड यू बीइंग द ऑफिसर इन दैट एरिया, आप उस एरिया के क्या है, इंचार्ज हैं, आप वहाँ के ऑफिसर हैं, एंड यू हैव टू रिजॉल्व दिस मैटर। आप क्या करेंगे? दिस इज द केस, परफेक्ट केस ऑफ एथिकल डायलेमा, एथिकल स्टडीज, कि वहाँ पर आप किस तरह से एक्शन लेंगे। वहाँ पर क्या इन्वॉल्व है? वहाँ पर इन्वॉल्व है कि खाने से ज़्यादा उसने अनटचेबिलिटी को वहाँ पर इम्बाइब किया गया है। बट आपको क्या समझाना है अल्टीमेटली, दैट नो, इट इज मोर अबाउट द हाइजीन और द काइंड ऑफ फूड ही इज प्रिपेयरिंग। अगर उसने प्रॉपर हाथ अच्छे धोए हैं, अच्छे से खाना बनाया है, उसने हाइजीन को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, खाने का टेस्ट अच्छा है, व्हाई आर रिफ्यूजिंग द फूड? वो भी तो अल्टीमेटली एक ह्यूमन बीइंग है। और सोसाइटी में इस चीज को कैसे ब्रेक करोगे आप? दे विल से कि कुछ भी हो नहीं खाएंगे, तो ब्लड से इम्प्योर है। और व्यू बिंग ऑफिसर आपको ये चीज समझाना। अभी सबसे बड़ा एथिकल डायलेमा कहां दिख रहा है? कोरोना वायरस वैक्सीन।
ठीक है। खैर उसमें तो एथिकल से ज़्यादा और भी चीज़ें हैं, बट वो भी एक चीज़ है कि नहीं लगवाएंगे। तो सच थिंग अल्टीमेटली आफ्टर इंक्वायरी इनके साथ जब हम करेंगे, गौतम बुद्ध और इनके विचारों के साथ हम अपनी इंक्वायरी करेंगे, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो हम भी सीख जाएंगे कि कैसे सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, और क्यों उन्होंने ऐसा सोचा था उस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड देयरफॉर द फिलॉसफी इज़ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ठीक है, अभी अच्छा लग रहा होगा कि सर इतना सिलेबस है, ये है वो है, लेकिन अब देखो कि हम करने क्या जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ों के हुए हम डिसीजन को समझने जा रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अर्थ और द क्रिएशन दैट गॉड हैज गिवन अस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझ करते हैं यहाँ पे, एंड विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम इंडियन फिलोसफी। सो विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द इंडियन फिलोसफी इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड देयर आई विल स्टार्ट टीच यू द कंप्लीट फिलोसफी इन द मैनर आई हैव टोल्ड यू। पढ़ेंगे और सारा का सारा दर्शन को अच्छे से उसके दर्शन कर लेंगे। ठीक है, सो विल डू द फिलोसफी, विल इंक्वायर अबाउट द फिलोसफी, एंड वी विल कंप्लीटली इंक्वायर द सब्जेक्ट। हम पूरे सब्जेक्ट और सिलेबस की इंक्वायरी करेंगे। तो इंजॉय द सब्जेक्ट। आप लोग कभी भी क्या करते हो, सिर्फ सिलेबस खत्म करना है, इंजॉय करना है सब्जेक्ट को। द मोर यू विल इंजॉय द सब्जेक्ट, द मोर यू फाइंड योरसेल्फ सिंक विद द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपके लिए उतना अच्छा हो जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू टुमारो विद द फर्स्ट टॉपिक ऑन इंडियन फिलोसफी। सो जो आपका फिलोसफी सिलेबस को कल हम लोग आज समझें, कल हम लोग फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर इनिशिएट करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।